Jai Shri Krishna. I'm Sujata, a retired English teacher. I would be giving discourses on the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is also known as the Song Divine. Lord Krishna gave Updesh of Gita to Arjun on the battlefield of Kurukshetra. It took him 2.5 hours to give a discourse that is divided into 18 chapters of the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is very relevant in these times. There are so many professionals and young people, old and children, who are going through anxiety and stress, and Bhagavad Gita is relevant for all times and all climes, for all ages, children, young and old, equally. It holds out. It's a torch bearer to everybody. Whenever you are in a crisis, you open the Bhagavad Gita at any page and it shows you the path out of your misery. So here we begin with the first chapter of the Bhagavad Gita. It begins with Dhritarashtra asking Sanjay. Sanjay assembled on the holy field of Kurukshetra, eager to fight. What did my children and the children of Pandu do? Now, Dhritarashtra was the father of the Kauravas and he was blind. He was also blind in a symbolic way that वो पुत्र मोह में अंधा था. उसने कभी अपने बच्चों को काउंसल नहीं किया कि अच्छे मार्ग पे चलो, बुरे मार्ग को छोड़ दो. तो कौरव बड़े दुष्ट बन गए, बहुत दुष्ट स्वभाव की, दुष्ट प्रकृति के बन गए. और धृतराष्ट्र तो जन्माद्ध थे, लेकिन गांधारी ने अपनी स्वेच्छा से अपनी आंखों पे पट्टी डाल ली और बच्चों को गाइड करने वाला कोई भी पेरेंट नहीं था. और ऊपर से गांधारी का भाई शकुनी ने कसम खाई कि जिन्होंने मेरी बहन का विवाह अंधे राजा से किया है, मैं उस परिवार को समूल नष्ट कर दूंगा. तो वो इसलिए बहन के घर में आके बैठ गया और रोज़ नई विपत्तियां उनके लिए क्रिएट करने लग गया. तो धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा कि संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान पे इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय ने कहा, at that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhan spoke these words. So, जब वो असेंबल हुए थे कुरुक्षेत्र के मैदान पे, तो दुर्योधन ने गुरु द्रोण से ऐसा कहा कि द्रोण, गुरु जी, ये सामने इकट्ठी हुई पांडवों की सेना को देखिए. इसमें बड़े बड़े सेनापति हैं जो कि बहुत शूरवीर हैं, अर्जुन और भीम के समान शूरवीर हैं. तो इस तरह उसने कहा, Behold, O revered master, the mighty army of the sons of Pandu arrayed for battle by your talented pupil Drishtdyuman, the son of Drupad. तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो था, वो उनका पांडवों का चीफ्टेन था. उसने उस आर्मी को तैयार किया, उसकी व्यूह रचना की, और उस आर्मी को आप देखिए. There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Bhim and Arjun, such as Satyaki and Virat and the Maharathi Drupad, Dhrishtaketu, Chekitan and the valiant king of Kashi, and Purjit, Kuntibhoj and Shabid, the best of men, and mighty Yudhamanyu and valiant Uttamauja, Abhimanyu the son of Subhadra, and the 5 sons of Draupadi, all of them Maharathis. तो उन्होंने पांडवों की सेना के योद्धाओं को गिनाया कि ये इस तरह के बड़े बड़े महारथी योद्धा पांडवों की सेना में हैं, जैसे कि सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वेलियंट किंग ऑफ काशी, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, वो सभी महारथी हैं. उन सबको गिनाया. O best of Brahmins, know them also who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them below. अब गुरु जी कृपा करके आप उनको भी सुनिए जो कि मेरी सेना के सेनापति हैं.
yourself and Bhishma, Karna and Kripacharya, who is ever victorious in battle, and even so Ashwathama, Vikarna and Bhurishrava, the son of Somdat. तो आप और पितामह भीष्म और कृपाचार्य, इस तरह अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सब बड़े बड़े योद्धा, बहादुर योद्धा हैं. And there are many other heroes, all skilled in warfare, equipped with various weapons and missiles, who have staked their lives for me. तो और भी बहुत से शूरवीर योद्धा मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, और वो युद्ध के हथियार लेकर युद्ध स्थल में तैयार खड़े हैं. This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhim, is easy to conquer. ये जो हमारी सेना है, अब दुर्योधन तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो बहुत एरोगेंट था, घमंडी था. उसने कहा दिस आर्मी ऑफ आवर्स, ये हमारी सेना बहुत अनकॉन्करेबल है, इसमें बहुत माइटी वॉरियर्स हैं, बड़े शूरवीर हैं, तो अवर आर्मी इज़ अनकॉन्करेबल. जबकि उनकी सेना जो भीम के द्वारा प्रोटेक्टेड है, वो ईजी टू कॉन्कर है, आसानी से उसको जीता जा सकता है. Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, do you all guard Bhishma in particular on all sides. तो हमारी सेना में भीष्म और द्रोण जैसे महारथी योद्धा हैं, तो कृपा करके भीष्म को चारों तरफ से गार्ड करके रखिए, उनके साथ उनको कोई मार ना सके. तो अब भीष्म तो बहुत बड़े योद्धा थे, उनको तो कोई, इसमें एक बहुत गहरा मीनिंग है. अब जब भीष्म जो थे वो उनको पता था कि न्यायोचित तो पांडवों का लड़ना है, और कौरवों की तरफ से वो फिर भी लड़े, क्योंकि उन्होंने कौरवों का नमक खाया था. दे वॉन्टेड टू बी ट्रू टू देयर सॉल्ट. तो कौरवों का नमक खाया था, इसलिए कौरवों की तरफ से लड़े. और युद्ध में सुबह से शाम तक युद्ध होता था, शाम को सीज फायर हो जाता था. और उस समय कृष्ण ने जब देखा कि लड़ाई के मैदान में हाहाकार मच गया है, भीष्म पितामह रोज के 10,000 सैनिकों को मार रहे हैं, तो इस तरह तो कृष्ण ने कहा हम हार जाएंगे. तो उन्होंने अर्जुन को कहा तुम जाओ और पितामह के पास शाम के समय में युद्ध जब विराम होता है उस समय जाके पितामह से पूछो कि पितामह हम आपका संहार कैसे कर सकते हैं. तो अर्जुन पितामह के पास गए और उन्होंने कहा पितामह हम आपका संहार कैसे कर सकते हैं. तो पितामह ने कहा यदि मेरे सामने कोई स्त्री आ जाए तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार छोड़ दूंगा. तो कृष्ण जी ने कहा बस ऐसा ही करो. शिखंडी एक ट्रांसजेंडर था, हिजड़ा था, उसको उन्होंने पितामह के सामने ले आए, तो पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए और इस तरह सबने उनको बाणों से बिंध दिया. और पितामह बाणों की शैया पर रहे जब तक कि सूर्य दक्षिणायन में नहीं गया, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे मृत्यु भी उन्हें नहीं ले जा पाएगी. तो उन्होंने कहा कि जब दक्षिणायन में सूर्य होगा तो उस समय जाने वाले आत्माएं स्वर्ग को प्राप्त होती हैं, तो उस समय ही मैं शरीर को त्यागूंगा. तो तब तक वो बाणों की शैया पर पड़े रहे. तो इस तरह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द कौरवा रेस, देयर ग्लोरियस ग्रैंड पैट्रियार्क भीष्म, चीयरिंग अप दुर्योधन, रोड अलाउड लाइक ए लायन एंड ब्लू हिज कॉन्च. तो कौरवों के दादा भीष्म ने दुर्योधन के हृदय को हर्षित करते हुए बहुत जोर से शंखनाद किया. शंखनाद का मतलब है हम युद्ध के लिए तैयार हैं. Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets all at once blared forth and the sound was tumultuous. तो इसके बाद ढोल नगाड़े और शंख बजने लगे जिसका नाद बहुत ही ऊंचा था. Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Shri Krishna as well as Arjun blew their celestial conches. तो उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए. श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त और भीम के शंख का नाम था पौंड्र. तो सब ने अपने अपने शंख बजाए. श्री कृष्ण blew his conch named पांचजन्य, अर्जुन his own called देवदत्त and भीम of terrible deeds blew his mighty conch पौंड्र.
King Yudhishthir, son of Kunti, blew his conch Anant Vijay, while Nakul and Sahadev blew theirs, known as Sughosh and Manipushpak, respectively. तो किंग युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन तीनों ने भी अपने अपने शंख अनंत विजय और सुघोष और मणिपुष्पक बजाए. And the excellent archer, the king of Kashi, and Shikhandi the Maharathi, Drishtadhyuman and Virat, and the invincible Satyaki, Drupad, as well as the 5 sons of Draupadi, and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severally blew their respective conches from all sides. So इस तरह पांडवों की सेना के वीर शूरवीर योद्धा जो थे, उन सब ने अपना अपना शंख बजाया, बताने के लिए कि हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं. एंड द टेरिबल साउंड इकोइंग थ्रू हेवन एंड द अर्थ रेंट द हार्ट्स ऑफ धृतराष्ट्र's sons. और जो इतना बड़ा शंखनाद था, उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए. Now, O Lord of the earth, seeing your sons ride against him, and when missiles were ready to be hurled, Arjun, who had the figure of Hanuman on the flag of his chariot, took up his bow and then addressed the following words to Shri Krishna: Krishna, place my chariot between the two armies. अब अर्जुन जो था, उसके रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, उस पे हनुमान जी का चित्र बना हुआ था. तो ऐसे हनुमान जी के चित्र वाली ध्वजा वाले रथ वाले अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है. And keep it there till I have carefully observed these warriors drawn up for battle, and have seen with whom I have to engage in this fight. I shall have a look at the well-wishers of evil-minded Duryodhan in this war, whoever have assembled on his side and are ready for the fight. तो मैं देखना चाहता हूँ कि दुष्ट हृदय दुर्योधन के लिए कौन कौन राजा लोग अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत हुए हैं. तो मैं उनको देखूं कि वो सब इधर इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, तो उनको एक बार देखना चाहता हूँ. Sanjay said, O king, thus addressed by Arjun, Shri Krishna placed the magnificent chariot between the two armies in front of Bhishma, Drona and all the kings, and said, Arjun, behold these Kauravas assembled here. तो संजय ने कहा कि हे राजन, इस तरह अर्जुन द्वारा कहे गए श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों आर्मीज के बीच में खड़ा कर दिया, भीष्म और द्रोण के सामने और सारे महारथी शूरवीर राजाओं के सामने खड़ा कर दिया, और कहा कि हे अर्जुन, इन कौरवों को यहाँ इकट्ठा हुए देखो, कौरव सेना को यहाँ देखो. Now Arjun saw stationed there in both the armies his uncles, granduncles and teachers, even great-granduncles, maternal uncles, brothers and cousins, sons and nephews and grandnephews, even so friends, fathers-in-law and well-wishers as well. तो अर्जुन ने अब देखा वहाँ इकट्ठे हुए दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी मित्र, हितैषी, संबंधी, तो इन सबको वहाँ इकट्ठा हुआ देखा. Seeing all those relations present there, Arjun was overcome with deep compassion and uttered these words sorrowfully. तो इन सबको देख के अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया और उसने बहुत शोक से ये शब्द कहे. Arjun said, Krishna, at the sight of these kinsmen arrived for battle, my limbs give way and my mouth is getting parched. Nay, a shiver runs through my body and here stands an end. तो उसने कहा कि इन सब संबंधियों को, मित्रों को, हितैषियों को देखकर मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा शरीर कांप रहा है. The bow Gandiv slips from my hand and my skin too burns all over. My brain is whirling as it were and I can no longer stand straight. तो मेरा दिमाग घूम रहा है और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है और मेरा स्किन बर्न हो रही है चारों तरफ से. तो मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ. एंड केशव, आई सी सच ओमेन्स ऑफ ईविल, नॉट डू आई सी एनी गुड इन किलिंग माई किन्समैन इन बैटल. और हे कृष्ण, मेरे को ये सब बुराई के सूचक नज़र आ रहे हैं और मुझे इन सब संबंधियों को मारने में कोई भलाई नज़र नहीं आ रही है. कृष्ण,
I do not covet victory, nor kingdom, nor pleasures, Govind. Of what use will kingdom or luxuries or even life be to us? तो कृष्ण, मैं राजपाट की इच्छा नहीं करता और ना ही सुखों की। गोविंद, मेरे किस काम के हैं राजपाट और सुख, और जीवन भी किस काम का? जिन लोगों के लिए जीवन जीना चाहते हैं और सुख और ऐश्वर्य चाहते हैं, वो सब तो यहाँ अपनी जान देने को तैयार खड़े हैं मेरे सामने। Those very persons for whose sake we covet the kingdom, luxuries and pleasures, teachers, uncles, sons and nephews, and even so granduncles and great-granduncles, maternal uncles, fathers-in-law, grandnephews, brothers-in-law and other relations are here arrayed on the battlefield, staking their lives and prosperity. तो वही मित्र, हितैषी, संबंधी जिनके लिए हमें राजपाट और सुख सुविधा चाहिए, वो सब तो अपनी जान देने के लिए मेरे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तो इनको मारकर ये सुख सुविधा किस काम की? O slayer of Madhu, I do not want to kill them, though they may slay me even for the sovereignty over the three worlds, how much the less for the earthly kingdom. हे केशव, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन संबंधियों को मारना नहीं चाहता हूँ, तो फिर केवल पृथ्वी लोक की तो बात ही क्या है? कृष्ण, हाउ कैन वी होप टू बी हैप्पी स्लेइंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, किलिंग इवन दीज डिस्पैराडोज, सिन विल श्योरली एक्रू टू अस. तो हे कृष्ण, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? इन दुष्टों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा. Therefore, Krishna, it does not behove us to kill our relations, the sons of Dhritarashtra, for how can we be happy by killing our own kinsmen? तो कृष्ण, हमारे लिए ये उचित नहीं है कि हम अपने संबंधियों को मारें. धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये तो हमारे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं. Even though these people with their minds blinded by greed perceive no evil in destroying their own race and no sin in treason to friends, why should not we, O Krishna, who see clearly the sin accruing from the destruction of one's family, think of desisting from this crime? तो चाहे इन लोगों की बुद्धि को ग्रीड ने, लालच ने अंधा कर दिया है, तो ये देख नहीं पा रहे हैं अपने भाई बंधुओं को मारने का पाप. लेकिन हमारा तो बुद्धि ब्लाइंडेड नहीं है लालच में, तो हम क्यों इनको मारें? हमें तो नज़र आ रहा है कि भाई बंधुओं को मारकर क्या पाप को इंसान प्राप्त होता है, तो हम क्यों ऐसा काम करने जा रहे हैं? Age long family traditions disappear with the destruction of a family, and virtue having been lost, sin takes hold of the entire race. तो एज लॉन्ग फैमिली ट्रेडिशंस जो होती हैं, परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं एक परिवार नष्ट होने पे, और वर्चू जब समाप्त हो जाती है तो पाप उस परिवार को लिप्त कर लेता है. With the preponderance of wise Krishna, the women of the family become corrupt, and with the corruption of women, O descendant of Vrishni, there ensues an intermixture of castes. तो पाप के बढ़ जाने से परिवार की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने पर इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट्स हो जाता है. जाति जो होती है, इंटरमिक्सचर हो जाता है कास्ट का, एक कास्ट दूसरी से मिक्स हो जाती है. तो ऐसे होने से प्योर कास्ट की प्योरिटी मेंटेन नहीं रहती, तो जो पितरों को अर्पण तर्पण करते हैं वो उन तक नहीं पहुंचता है. ऐसा करने से पितर अपने लोक से गिर जाते हैं. तो progeny owing to promiscuity damns the destroyers of the race as well as the race itself. Deprived of the offerings of rice and water, shraddha, tarpan, etc., the mains of their race also fall. तो पितृलोक से पितर भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनको श्राद्ध और तर्पण नहीं पहुंचता, क्योंकि वर्ण संकर हो जाता है. जाति में वर्ण संकर, संतान में वर्ण संकर हो जाता है, तो पितर पितृलोक से गिर जाते हैं. Through these evils bringing about an intermixture of castes, the age-long caste traditions and family customs of the killers of kinsmen get extinct.
तो इस तरह इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट होने से, वर्ण संकर होने से कास्ट की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जो अपने संबंधियों को मारने वाले लोग हैं पापी, उनकी परंपराएं, वंश की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। Krishna, we hear that men who have lost their family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. तो हमने सुना है कि जिनके परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं वो नरक के भागी बनते हैं। Oh, what a pity! We have set our mind on the commission of a great sin, in that due to lust for throne and enjoyment we are intent on killing our own kinsmen. तो कितने दुख की बात है कि हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं केवल राज भोगने के लिए, राजपाट के लिए और सुख सुविधा के लिए हम अपने संबंधियों को मारने जा रहे हैं। It would be better for me if the sons of Dhritarashtra armed with weapons killed me in battle while I was unarmed and unresisting. मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कौरव मुझे निहत्थे को मार डालें, जबकि वो हथियारों से लैस होकर वो मुझ निहत्थे को मार डालें। वो बेटर है बजाय कि मैं हथियार उठा के उनके साथ बराबरी से युद्ध करूं। Sanjay said, Arjun, whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken thus and having cast aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot. तो संजय ने धृतराष्ट्र से बताया कि अर्जुन, जिसका मन बहुत विचलित था बैटलफील्ड के ऊपर, ऐसा कहने पे उसने अपने धनुष बाण रख दिए और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस तरह से पहला अध्याय समाप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की थी युद्ध से पहले, जब द्यूत क्रीड़ा में धोखे से उनका सब कुछ छीन लिया था कौरवों ने, तो उनको कहा था कि तुम 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोग के आओगे। तो पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोग के जब वापस आए तो कृष्ण जी कौरवों के पास उनका संदेश लेके गए कि हे कौरवों, पांडवों को अब उनका हिस्से का राजपाट दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि हम उनका हिस्से का राजपाट नहीं देंगे, उनको जो चाहिए वो युद्ध करके लें। तो कृष्ण भगवान ने कहा, एक लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे उनसे प्लीड किया कि उनको 5 गांव दे दो और वो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि शुच्यग्रमेव न दास्यामि अहम। तो उसने कहा कि मैं सुई की नोक के अगले हिस्से के बराबर भी लैंड पांडवों को नहीं दूंगा। तो कृष्ण बोले कि ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अब तो युद्ध होकर रहेगा, भाई भाई को मारेगा, बहुत खून खराबा होगा, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। फिर दोनों साइड्स के कृष्ण के साथ अच्छे संबंध थे, तो दोनों साइड से दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण जी से युद्ध में सहायता मांगने गए। दुर्योधन पहले पहुंचा तो वो बहुत अकड़ वाला था, वो कृष्ण की सिर की तरफ जाके अकड़ से बैठ गया। और थोड़ी देर बाद अर्जुन आया, तो अर्जुन बड़ा विनम्र स्वभाव का था, वो कृष्ण जी के पैरों की तरफ जाके बैठ गया। तो कृष्ण जी की आँख खुली, कृष्ण जी सो रहे थे, तो कृष्ण जी की जब आँख खुली तो उनकी नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि अर्जुन पैरों की तरफ बैठा था। तो उन्होंने कहा, अर्जुन कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन गुस्से में आ गया, गुस्से से बोला, पहले मैं आया था, पहला हक मेरा है, मेरे से पूछो पहले। तो कृष्ण जी ने कहा, नहीं, पहले मेरी नज़र अर्जुन पे पड़ी है, पहला हक अर्जुन का है, पहले चॉइस उसकी है। तो अर्जुन ने बोला कि हम युद्ध में आपकी मदद मांगने आए हैं। तो कृष्ण ने बोला, देखो, एक तरफ तो मेरी विशाल सेना है जिसमें हाथी, घोड़े, घुड़सवार, पैदल, ये सारी सेना है। एक तरफ तो मेरी विशाल सेना है और दूसरी तरफ केवल मैं हूँ, और मैंने कसम खाई है, प्रण लिया है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं केवल रथ चलाऊंगा। अब तुम चुन लो, तुम्हें क्या चुनना है। तो अर्जुन बहुत खुश हुआ, सहर्ष। उसने कहा, केशव, मेरे लिए तो जिस तरफ आप हो विजय उसी तरफ होगी, मैं तो आपको चुनता हूँ, चाहे आप हथियार मत उठाओ, आप केवल मेरे रथ के सारथी बन के मेरे को मार्गदर्शन करो, तो मैं आपको चुनता हूँ। तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, बोला, अर्जुन कितना मूर्ख है। तो उसने
कृष्ण जी की विशाल सेना को चुना। तो इस तरह से फिर युद्ध पे भूमि पे सेनाएं दोनों तैयार हुई और फिर इस तरह धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कैसा हो रहा था, और संजय की दिव्य दृष्टि थी, उसको डिवाइन आइज का ब्लेसिंग थी, तो उसको युद्ध भूमि पूरी नज़र आ रही थी। तो वहाँ से वो बैठे बैठे देख के सारा धृतराष्ट्र को बता रहा था कि युद्ध भूमि पे अब दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं, आमने सामने खड़ी हो गई हैं। फिर अर्जुन ने कृष्ण जी से बोला मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। फिर कृष्ण जी दोनों सेनाओं में ले चले, और फिर अर्जुन ने देखा कि उसको किन के साथ युद्ध करना है। फिर अर्जुन बहुत ज़्यादा करुणा से भर गया, और फिर उसने धीरे धीरे फिलोसोफाइज किया कि मैं अपने संबंधियों से के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तीनों लोगों की राजपाट के लिए, सुख सुविधाओं के लिए नहीं युद्ध करूंगा, अकेले पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़ दो। तो चाहे मुझे निहत्थे को वो मार डालें, मुझे ये मंजूर है। तो इस तरह से वो बहुत दुखी हृदय से रथ के पिछले भाग में बैठ गया। शेष हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।